इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जैसा कि हमने पढ़ा है कि वेव टू टाइप्स के होते हैं बेसिक क्लास 11th में, मैकेनिकल वेव एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो पहले वेव क्या है? तो वेव इज अ डिस्टरबेंस इन ए मीडियम इन विच एनर्जी ट्रांसफर्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। Particles of the medium vibrate about their mean position. They do not transfer. Energy and moment transfers. Disturbance transfers. This is the common definition of electromagnetic wave. Not this is a simple wave. There are two types of wave. One is mechanical wave, another is electromagnetic wave. We have studied about mechanical wave in class 11th waves and oscillation chapter, in which we have studied about the vibration in air particle, air molecules, in which sound wave have traveled, in which density of the particles becomes rarer, denser, where rarefaction and compression and rarefaction are formed and wave travel. Due to, on the basis of vibration and direction of propagation of particle, there are two ways of vibration. One is vibration and propagation along same line, that are longitudinal wave that occurs in sound wave in air. Another waves where vibration, direction of vibration of particle and direction of propagation of wave are perpendicular to each other. That is the transverse waves that occurs in waves in string or waves in water, where crest and trough are formed. These waves require material medium for their propagation. Means if the wave must have some particle that they show they are vibrate about their mean position. No particle, no vibration. But electromagnetic waves do not require material medium for their propagation. Its speed is very its speed is speed of light, so very highest speed. It do not require material medium for their propagation. It is electromagnetic wave. Light is an electromagnetic wave. Basically, this is the transverse waves. Here, direction of electric field and magnetic field are perpendicular to direction of propagation of wave, as we define it. So you know most about the electromagnetic wave, and there are the electromagnetic wave are radio waves, microwaves, infrared, visible light, ultraviolet, X-rays, and gamma rays. These are electromagnetic waves. Speed of electromagnetic wave is 3 into 10 power 8 meter per second, approximately, in air or vacuum. In another medium, its speed reduces. You know the scientist Hertz, Maxwell. These are those scientists which have discovered so many things in electromagnetic wave. Question now, initially definition of electromagnetic wave, that it is a electromagnetic wave produced due to simultaneously variation of electric and magnetic field vectors. They are vibrating perpendicular to each other and direction of propagation of wave. How electric and magnetic field both produce? As you know, when charged particle is at rest, it produces only electric field. When charged particle in uniform motion, it produces electric field as well as magnetic field. When charged particle in accelerated motion, it produces electric field, magnetic field as well as electromagnetic wave. Accelerating or oscillating charged particle produces electromagnetic wave. We have to study some equations of electric field, magnetic field. We know that each term which is used in the equation that will be useful to solve numerical. What is the frequency? What is the maximum value of electromagnetic wave? How electric field and magnetic field are interrelated? How they are related with the speed of light?
How we can calculate speed of electromagnetic wave when we place electric field or magnetic field in other than air. A new term that is used is displacement current. Displacement current. Generally, we know about the current. Current is rate of flow of charge. Rate of flow of charge. And electro in EMI, electromagnetic induction. Electromagnetic induction. You know, rate of change of electric flux produces rate of change of magnetic flux produces induced current. Similarly, there is a current that will produce here where rate of change of electric flux will be used. We have to study property of each electromagnetic wave, their uses, their order of frequency or order of wavelength, like a spectrum. There is a term spectrum. What is a spectrum? When we speak about the spectrum, we think that a spectrum is a rainbow where order of different colors of light arranged in a certain order in increasing frequency or increasing wavelength. That is the spectrum. That is, waveguide. So waveguide is only visible light. Other than visible light, other electromagnetic wave are there. So a spectrum here, a spectrum is also a arrangement of electromagnetic wave in order of frequency or wavelength. And you must learn their order because it will ask in the MCQ. You are given 4 or 5 electromagnetic wave out of which you have to arrange electromagnetic wave in certain order. So order must be learned. Sometimes value of their wavelength and frequency are also needed to learn. तो अभी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को शुरू करते हैं अकॉर्डिंग टू दिस बुक. क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव छोटा चैप्टर है बट डीप में हर कुछ उसको स्टडी करेंगे अभी और क्वेश्चन भी करेंगे. तो जो एनसीईआरटी बुक है वही बुक के अंदर से हम पॉइंट लेते हैं. टाइम हम बिल्कुल मेन पॉइंट को कवर करेंगे. ऐसा नहीं कि एक एक चीजों को कवर करेंगे. ऑलरेडी जो बुक होगा इस बुक में प्रिसाइज चीजें हैं. हमें कौन चीजें कहाँ पे है मालूम है तो हम टाइम ज्यादा लेंगे नहीं. हम अभी की क्लास में इसको फिनिश करेंगे. क्लास 1 से 1.5 घंटे का हो सकता है. स्पीड में लेंगे. होता क्या है कि बहुत सारी चीजें छोटे छोटे चीज को हम छोड़ देते हैं बट यहाँ पे हम छोड़ेंगे नहीं. इसको देखिए क्या लिखता है. इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड. अभी डिस्कशन किए हैं. टू करंट कैरिंग वायर्स एक्सर्ट ए मैग्नेटिक फोर्स ऑन ईच अदर. आपने पढ़ा है टू पैरेलल वायर प्रोड्यूसेस फोर्स बिटवीन देम. सेम डायरेक्शन में हमने अट्रैक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में हमने रिपल्सन किया है. मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग विथ टाइम गिव्स द इलेक्ट्रिक फील्ड. वही है. Converse is also true. Converse is also true means changing magnetic field produces electric field, and changing electric field also produces magnetic field. Does an electric field changing gives rise to magnetic field? James Clerk Maxwell argued this was indeed case. Not only an electric current but also time varying electric field generates magnetic field. What do you get? Time varying electric field produces magnetic field. बहुत सिंपल. जब इलेक्ट्रिक फील्ड तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा. मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा. ये मैं नहीं कहता, ये मैक्सवेल कह रहे हैं. While applying Ampere's circuital law to find magnetic field in a point outside the capacitor connected to time varying current. यहाँ पे कह रहा है कि कैपेसिटर के अंदर जब मैं एम्पियर सर्किटल लॉ, जो एम्पियर सर्किटल लॉ आपने पढ़ा है बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई, उसके बारे में कह रहा है कि ये आप इसको यूज कर सकते हैं. Maxwell noticed that inconsistency of Ampere's circuital law. He suggested that existence of additional current called by him displacement current to remove this inconsistency. देखो ये जो टॉपिक जिसके बाद कंसिस्टेंसी है, इन्होंने कहा है कि हमने एक तरीके से अभी फिगर अभी आए एक तरीके से जब बी डॉट डीएल निकाला
तो हमारा बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई करेक्ट बैठा। जब उसी तरीका मैंने चेंज कर दिया उसी कैपेसिटर के लिए, बी डॉट डी इक्वल टू म्यू नॉट आई किया एक तरीके से, तो वो दूसरी जगह अप्लाई नहीं हुआ। तो नहीं हुआ तो हमने देखा कि देयर आर सम मिसिंग टर्म, देयर आर सम मिसिंग टर्म है, ये हमें पता चला मिसिंग टर्म है। ये मिसिंग क्या है, तो ये मिसिंग टर्म क्या, तो ये मिसिंग टर्म ही डिस्प्लेसमेंट करंट था। ये डिस्प्लेसमेंट करंट ही मिसिंग टर्म था, डिस्प्लेसमेंट करंट। मैक्सवेल फॉर्मुलेटेड सेट ऑफ इक्वेशन इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। मैक्सवेल ने एक दूसरा फॉर्मूला दिया जो अभी हम लेंगे, और जिसको हम कहेंगे, तो जिसको हम मैक्सवेल इक्वेशन नाम दिया गया, मैक्सवेल इक्वेशन नाम दिया गया। मैक्सवेल इक्वेशन एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में अप्लाई हो रहा है। वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक, देखो वेरिंग, वेरिंग मतलब चेंज हो रहा है, दोनों मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों चेंज होता है। प्रोपागेट इन स्पेस, प्रोपागेट इन स्पेस, प्रोपागेट मींस क्या होता है, दे ट्रेवलिंग, ट्रेवलिंग व्हाट, ट्रेवलिंग, ट्रेवलिंग दैट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। द स्पीड ऑफ वेव अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन टर्न्ड आउट टू बी वेरी क्लोज टू स्पीड ऑफ लाइट। तो वही कहा, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का अगर वेरिएशन होता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होता है फ्रॉम ऑप्टिकल मेजरमेंट। दिस लाइट टू बी रिमार्केबल कंक्लूजन, लाइट टू बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो ये चीजें आया। मैक्सवेल्स वर्क द यूनिफाइड डोमेन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड लाइट। ये मैक्सवेल इन तीनों चीज पे काम किया, किस पे, इलेक्ट्रिसिटी पे, किस पे, मैग्नेटिज्म पे और लाइट, तीनों पे काम किया। 1885 डेमोस्ट्रेटेड एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखिए तो मैक्सवेल का नाम इसमें सबसे पहले आया। इन टेक्नोलॉजी बाय मार्कोनी, मार्कोनी का नाम आप लोगों ने सुना है, मार्कोनी याद रखो, मार्कोनी बहुत फेमस नाम है। आप लोग इतने यूज नहीं करते क्योंकि मार्कोनी ने जिस डिवाइस का यूज, जो डिवाइस को बनाया ना, हमारे यहाँ बहुत यूज हुआ, बहुत यूज हुआ, अब नहीं होता है। कोई बता सकते हैं कि मार्कोनी ने किस इन्वेंशन किया था? तो आप लोग के सभी के जो पेरेंट्स हैं ना, और सभी के दादाजी ने उन डिवाइस का बहुत यूज किया है। ठीक है, हो सकते हैं फादर नहीं हो, लेकिन फादर ने बचपन में जरूर यूज किया है सभी के, और दादाजी ने तो जरूर ही यूज किया है। रेडियो ठीक था है, सर। रेडियो, यस रेडियो, रेडियो, रेडियो को मार्कोनी ने किया था। रेडियो था। ठीक है, हाँ रेडियो को किया था, यस। अदर रिलेट टू ड्यू टू कोर्स ऑफ द रिवॉल्यूशन इन दैट वर विटनेसिंग टुडे। तो ये यहाँ पे है, मार्कोनी का नाम है। और अभी नाम नीड फॉर द करंट इट कॉन्सिक्वेंस दैट इज अकाउंट इलेक्ट्रिक वेव ब्रॉड स्पेक्ट्रम, इस चीजों पे आते हैं। मनन तुम्हें याद की है, तो क्या दादाजी रेडियो यूज करते हैं? मनन, ये तो आपने बोला ये तो आपने बोला कि यूज करा होगा, तो मुझे लगा कि रेडियो ही होगा। आवाज नहीं आ रही। ये तो आपने बोला ना कि दादाजी ने यूज करा होगा, चलो, तो रेडियो होगा, मुझे लगा। रेडियो मैं बोला नहीं था शायद। तो मतलब मैंने तुक्का मारा, रेडियो होगा। चलो ठीक है, नहीं, आपने कहा था ना यूज चलो करा ठीक है। होगा, तो तो मुझे लगा रेडियो होगा। हाँ 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 क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के हाँ बारे में हाँ बोल रहे हाँ थे। ठीक है, सही है। हाँ 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 ठीक इसलिए। है। तो हाँ, गुड। So we have seen in chapter that electrical current produces a magnetic field, वही चीज है, इलेक्ट्रिकल करंट जो है प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। ये तो हमने बायो सेवर्स लॉ से चैप्टर 4 में पढ़ा ही है कि इलेक्ट्रिकल करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। चेंजिंग इलेक्ट्रिकल फील्ड मस्ट आल्सो प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। देखो इलेक्ट्रिकल करंट जो है चेंज हो रहा है, यस, इलेक्ट्रिकल करंट जो चेंज हो रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, यस, बोलिए दोबारा, बोलो बोलो। हम्म, इलेक्ट्रिकल करंट जो चेंज हो रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, बोलो। हम्म, बोलो। इलेक्ट्रिकल करंट चेंज हो रहा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। हाँ हाँ। हेलो। हम्म, इलेक्ट्रिकल करंट चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस तो पहले भी हो चुका है कि चेंजिंग इलेक्ट्रिकल प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड आल्सो प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिकल फील्ड। दोनों मिला के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होता है। एम्पियर चर्च की टर्म और वीडियो डीएल इक्वल टू म्यू नॉट आई आया। अब यहाँ से थोड़ा सा टॉपिक में थोड़ी देर के लिए टर्न आउट होगा। टर्न आउट मतलब टॉपिक सडनली चेंज होगा और कुछ अजीब सी चीज आएगी, उस चीज पे आते हैं, देखिए क्या कर रहा है। टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट इनसाइड ए कैपेसिटर, इनसाइड ए कैपेसिटर, देखो बड़ी अजीब सी क्वेश्चन आई ना, कि कैपेसिटर, अभी अभी आपने कैपेसिटर पीछे पढ़ा है, तो कैपेसिटर में क्या होता है, एक में प्लस चार्ज होता है, एक साइड में माइनस चार्ज होता है, तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, आपने ये पढ़ा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, आपने ये पढ़ा है।
बट क्या लिखा है, टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड इन आउटसाइड द कैपेसिटर। आउटसाइड द कैपेसिटर हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि कैपेसिटर के बाहर जो है, यहाँ देखो बाहर जो है करंट होने का चांस होता है, तो करंट है तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है। We consider a plane circular loop of radius r whose plane is perpendicular to direction of current carrying wire, which is centered symmetrically with respect to wire. From symmetry, magnetic field is directed along circumference of circular loop, is same magnitude at all point of the loop. So B is the magnetic field outside. देखो ये बहुत छोटा सा पॉइंट है, इसके ऊपर मैंने पहले ही ओवर राइटिंग किया हुआ है, लेकिन मैं इस चीजों को हटा के दोबारा समझाता हूँ। देखिए ये जो सामने डायग्राम है, ये डायग्राम को आप बनाना, ये डायग्राम, ये जो डायग्राम है ना, ये दोनों डायग्राम को थोड़ा अपने अपने रजिस्टर में ड्रॉ करो। ये डायग्राम नंबर 1, डायग्राम नंबर 2, मैं वेट करता हूँ। हम्म, हम्म, हम्म। देखो यहाँ पे अभी जो ये टॉपिक करा रहा हूँ ना, मैं आपको बता देता हूँ, आप सभी को थोड़ा डीप में करा रहा हूँ। डीप इन द सेंस, स्कूल के लिए इन सब छोटी चीजों का कोई मतलब नहीं है, बट स्कूल एज वेल एज आपका एंट्रेंस में इस चीज के अंदर कोई छूटे नहीं, और कोई क्वेश्चन बनता है तो यू कैन आंसर। इसलिए थोड़ा इसको हम इस पे रुक रहे हैं। आपने भी पहले चैप्टर ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किया होगा, तो मुझे लगता है कि इस पॉइंट के ऊपर शायद डायग्राम पहले नहीं बनाया होगा। इवन तीनों डायग्राम बना लो। ठीक है, छोटा सा डायग्राम में कुछ ऐसा है नहीं। मैं पहले तीनों डायग्राम के बारे में आपको यहाँ पे पहले ही बता देता हूँ ताकि समझने में आसान रहेगा। डायग्राम नंबर 1 में ये कैपेसिटर का पार्ट है जो आप देख रहे हैं। कैपेसिटर में पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज है, और इसके बाहर में कैपेसिटर के बाहर में एक सर्कल बना हुआ है, आप देख रहे हैं सर्कल है, और इस सर्कल की रेडियस आर है, और इसके अंदर करंट आ रहा है। तो यहाँ पे एम्पियर सर्किटल लॉ इसके लिए लगाया गया, और यहाँ पे बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई आई लगा। जब ऐसा लगा तो दिस इज परफेक्टली सुटेबल, जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की बीडीएल का जो इक्वेशन होता है, परफेक्टली मैच किया, वैल्यू सारी मैच कर गई। अब इसी में क्या किया कि इसके जो भी डिवाइसेस था उसके स्ट्रक्चर चेंज करके, तो पहले जो सर्कल है ना, इसके स्ट्रक्चर करके एक पॉट टाइप स्ट्रक्चर इसको बना दिया गया। देख रहे हैं आप, एक पॉट टाइप स्ट्रक्चर बना के एक पीछे के पोर्शन को पॉट टाइप लगाया गया। जब ऐसे कंडीशन में बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई किया गया ना, तो यहाँ पे ये शूट नहीं किया, यहाँ पे गलत हो गया। यहाँ पे देख लीजिए, इनकी वैल्यू भी देख लीजिए क्या लिखा है इन्होंने। On applying Ampere's circuital law to such surface with the same perimeter, we find that left-hand side has not changed, but right-hand side is zero and not mu naught I। ये तो सेकंड लाइन है, सेकंड ग्राफ का पार्ट हो गया। ये सेकंड के बारे में कह रहा है। फर्स्ट के बारे में क्या है, we consider different surface which has same boundary। This is a pot-like surface which now here touches the current, but its bottom between the capacitor, its mouth is circular loop, its mouth is circular loop, bottom between the capacitor। ये सेकंड पार्ट का चल रहा है। और फर्स्ट पार्ट जो ऊपर वाला पार्ट था, यहाँ पे उसको ले लीजिए। फर्स्ट पार्ट जो यहाँ लिखा है, क्या लिखा है, we consider a plane circular loop of radius r whose plane is perpendicular to direction of propagation, direction direction of current carrying wire, which is centered symmetrically with respect, जो बता रहा है मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड अलोंग द सर्कमफेरेंस सर्कुलर लूप। वो तो ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे ये बना दिया। एंड it the same magnitude all point on the loop। B is मैग्नीट्यूड फील्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू बी टू आर। तो मतलब क्या है कि ये जो बी इंटू डीएल होता है ना, बी इंटू डीएल होता है ना, तो डीएल तो टू पाई आर हो गया, डीएल टू पाई आर हो गया।
और इक्वल टू म्यू नॉट आई, मतलब ये परफेक्ट सूट कर गया पहले वाले पार्ट में। जो पहला, ये दोनों एक ही डायग्राम है, मतलब ये जो मैंने बनाया और ये बनाया सेम ही है, तो पहले में परफेक्ट सूट हो गया। बट दूसरा वाला जो यहाँ पे ये जो एक्सप्लेनेशन है, इस एक्सप्लेनेशन में शूट ही नहीं कर रहा है। क्या लिख रहा है आगे देखिए, शो वी हैव ए कंट्राडिक्शन, हमको कंट्राडिक्शन है सेकंड लूप में। कैलकुलेटेड वन वे, एक तरीके से, मतलब पहले में कैलकुलेटेड वन वे इज मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट, कैलकुलेटेड अनदर वे मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी इज जीरो। तो कहता है पहली बार जब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे निकाला गया तो मैग्नेटिक फील्ड निकल के आया, और दूसरी बार में मैग्नेटिक फील्ड जीरो आ रहा है पी पॉइंट पे। ये कह रहा है, ये कंट्राडिक्शन है। अब क्या करना, ये दूसरे ग्राफ के बारे में भी बात होगी, पहले के बारे में हो गई। वी कैन एक्चुअली गेस मिसिंग टर्म बाय लुकिंग केयरफुली। कहता है अब ध्यान से देखो कि हमारे से क्या मिस हो गया टर्म। इज देयर एनीथिंग मिसिंग थ्रू द सरफेस एस बिटवीन पॉइंट ऑफ प्लेट ऑफ कैपेसिटर। कहता है कुछ हमारे से कुछ मिस हुआ है क्या, जो हमने कंसीडर नहीं किया, जिसके कारण वैल्यू गलत आ रही। यस ऑफ कोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड द प्लेट ऑफ कैपेसिटर हैव एरिया ए एंड टोटल चार्ज क्यू। कहता है कि अभी आपने मैग्नेटिक फील्ड लिखा, बट कैपेसिटर के बीच में, जो कैपेसिटर के बीच में, जैसा कि मैंने पहले बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, आपने निकाला हुआ है गॉस थ्योरम से। इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड को इग्नोर कर रहे हैं, नॉट इग्नोर मतलब उसको कैलकुलेट ही नहीं कर रहे हैं। तो कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन होता है, सिग्मा चार्ज अपॉन एरिया होता है, तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इसके अंदर में। तो लिखा है क्यू चार्ट मैग्नीट्यूड दिस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, इतनी वैल्यू है। द फील्ड इज परपेंडिकुलर टू सरफेस, होता ही है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है परपेंडिकुलर टू सरफेस होता ही है, पता है ये आपको। इट हैज सेम मैग्नीट्यूड, एरिया ऑफ कैपेसिटर वो सब है। शो वी, सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस एस। अब गॉस थ्योरम का यूज किया गया, फाई लगाया गया, फाई इक्वल टू ईडीएस होता है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड, डीएस एरिया है, और अभी अभी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट है, इसके साथ यहाँ कैंसिल कर दिया गया, तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट बच गया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हम मिस कर रहे थे उसको हमने लिया है, आप इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं। आप यहाँ पे दोनों साइड, तो फाइनली हमारे पास फाई इक्वल टू क्या बचा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट बचा, और इसको फिर से इंटीग्रेशन किया कर दोनों साइड। तो देखिए इसको, ये जो डी फाई बाई डी टी ये वाला पार्ट हो गया, और क्यू वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट में को बाहर करके ये हमारे पास आ गया। तो ये इक्वेशन आ गया, आप इसको पहले लिख लीजिए, यहाँ लिख लीजिए, ये वाला टर्म को लिखिए आप। अगर लिख लिए तो आप यहाँ पे देखेंगे, जो ये टर्म है डी क्यू बाई डी टी, ये तो करंट का होता है। तो आपका जो टर्म आ गया ये करंट का होता है, तो ये करंट ले लीजिए और इस एप्सिलॉन नॉट को ऊपर भेज दीजिए, तो आपके पास आई इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी हो गया। ये एक नया करंट आ गया, न्यू करंट हो गया, न्यू करंट हो गया। इस करंट में क्या हुआ है, डी फाइव बाई डी टी, डी फाइव बाई डी टी को आप क्या बोलेंगे, डी फाइव होता है चेंज इन फ्लक्स, ई मतलब चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं, चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाई टाइम। तो इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज, इसको दिस करंट इज कॉल्ड, न्यू करंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट, इसी को डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं। और इस डिस्प्लेसमेंट करंट को डिफाइन कैसे करेंगे, तो हम बोलेंगे इट इज एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एप्सिलॉन नॉट टाइम्स मल्टीप्लाई है, और डी फाइव बाई डी टी है रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दिस इज इक्वल टू न्यू करंट दैट इज डिस्प्लेसमेंट करंट। ये बात ही कहा, जो मिसिंग टर्म था जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। तो अभी यहाँ पे और भी चीजें को आप देख रहे हैं, तो क्या है आगे टर्म, तो आप यहाँ पे देखिए, मिसिंग टर्म इन एम्पियर सर्किट लॉ, वी जनरलाइज दिस लॉ बाय एडिंग टोटल करंट कैरिड बाय कंडक्टर थ्रू सरफेस अनदर टर्म व्हिच इज एप्सिलॉन नॉट टाइम्स रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब आपको यहाँ पे सोचना क्या है कि हमें यहाँ पे दो करंट, एक करंट तो पहले से था ही था जो कंडक्शन करंट था, और एक नया करंट आ गया डिस्प्लेसमेंट करंट। पहले करंट में सीधा करंट था, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का रोल नहीं था, अब की बार करंट में इलेक्ट्रिक फ्लक्स का रोल है। तो दोनों चीज को लिया गया, दिस इज इफ दिस इज डन, नो कंट्राडिक्शन इन द वैल्यू ऑफ बी ऑब्टेन एनीवेयर यूजिंग जनरलाइज एम्पियर सर्किट लॉ। कहता है अब जब आप डिस्प्लेसमेंट करंट लेते हैं, कंडक्शन करंट लेते हैं,
तो ये जो हमारा कंट्राडिक्शन है खत्म हो गया है, यही चीज बता रहा है। करंट कैरीड कंडक्टर्स ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड कंडक्शन करंट, जनरली होता है। करंट गिवन बाय न्यूटन ड्यू टू चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट। यस, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में आप लिख लीजिए। तो अब यहाँ पे एक मैक्सवेल का भी काम हो गया और एम्पियर का भी काम हो गया। तो यहाँ पे ये तो मैंने लिखा है, इसको पहले से इसको आप लिखिए ऐसे, जैसे कि आपने लिखना है बी डॉट डी। इस पर्टिकुलर केस के लिए जो भी हम कर रहे हैं, तो म्यू नॉट इंटू आई तो हम करते ही आई, बट ये आई कंडक्शन करंट है तो आईसी करो, प्लस दूसरा करंट डिस्प्लेसमेंट करंट आईडी है उसको भी लिखो। इसको पूरा आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, और आगे बढ़ा दो, म्यू नॉट इंटू आईसी रहने दो, एंड डिस्प्लेसमेंट करंट जो अभी निकाला था एप्सिलॉन नॉट टाइम्स डी फाई ई बाई डी टी, ये वाला आपका डिस्प्लेसमेंट करंट था। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन हुआ, इसमें एम्पियर का भी रूल आ गया और मैक्सवेल का। सो दिस इज कॉल्ड एम्पियर मैक्सवेल लॉ। दिस इज कॉल्ड एम्पियर मैक्सवेल लॉ। दिस इज एम्पियर मैक्सवेल लॉ। यही टोटल करंट के बारे में यहाँ भी लिखा हुआ है, लिख सकते हैं हम। यही चीज जो मैंने ऊपर लिखा वही चीज यहाँ दोबारा लिखा हुआ है, वही सेम चीज है। यहाँ पे कुछ फेराडेज के लॉज समझ रहे हैं, हम पहले से जानते हैं फेराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ऐसे हमने चैप्टर पढ़ा नहीं है, मैं आपको बता दूं फेराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में एक लाइन बात कर देते हैं। आप लोग को पढ़े हुए टाइम हो गया होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स याद रखना है, फाई इक्वल टू बी डी एस बी ए, फाई इक्वल टू बी डी एस बी ए। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस करंट, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स ऐसा बताते हैं। चेंजिंग तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ गया, फिर गिव्स राइज टू मैग्नेटिक फील्ड आ गया, सिमेट्रिकल काउंटर पार्ट डिसीज ये सब आ गया है। Displacement current being source of magnetic field, time dependent electric or magnetic field gives rise to each other. Faraday's laws of electromagnetic induction, Ampere Maxwell laws gives quantitative expression for this statement. Current being total current, one very important consequence of this symmetry is existence of electromagnetic wave. ठीक है, यहाँ पे जो एक छोटी सी चीजें है, ये सारी इक्वेशन में से आप ज्यादातर जानते हैं। मैं आप लोगों से थोड़ा सी पूछूंगा इसमें से, जानते हैं कंफर्मेशन में। देखो पहला तो आप जानते हैं गॉस थ्योरम है, बीडीएस इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ईडीएस, वही ईडीएस को डीए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जानते हैं आप। उसके बाद दूसरा, बीडीए इक्वल टू जीरो है, गॉसेस लॉ इन मैग्नेटिज्म, ईडीएल इक्वल टू डी फाइव बाई डी टी। ये जो टर्म है ईडीएल इक्वल टू डी फाइव बाई डी टी, ये तो अभी अभी आपने फोर्थ वाला पढ़ा। तो आप में से एक लोग चैट बॉक्स में जवाब देंगे कि इस चारों इक्वेशन में से कौन कौन से इक्वेशन को आप जानते हैं और कौन कौन से नहीं जानते हैं। वो जो जानते हैं उसके बारे में जवाब देना है, जो मतलब बताना है कि ये मैं आई वी नो, मतलब वो जो जानते हैं उसी के बारे में चैट बॉक्स में जवाब देना है, जो जानते हैं। मतलब जिसके बारे में पूछा जाए तो आप एक दो लाइन बोल सकते हैं। मैं दोबारा आपको स्क्रीन ले आता हूँ। देखिए, 1 2 3 4 चैट बॉक्स में जवाब दीजिए जिसके बारे में आप जानते हैं, मतलब जिसके बारे में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। चैट बॉक्स में जवाब दीजिए। अभी तक किन्हीं का जवाब नहीं आया है। देखो, ठीक है, वंशिका का जवाब आया है।
देखो एक्चुअली क्या है कि जो जवाब आप देंगे ना, तो इससे मुझे ये पता चलेगा कि आपको और जो दूसरी ये टॉपिक जो इक्वेशन है कहाँ से आया। अगर जानते ही नहीं होंगे, मैं भी स्किप कर दूंगा, तो फिर वैसे वो अपनी जगह पे रुका रहेगा। ये सपेक्षा 1 2 3 जानते हैं, राइट। अरे फोर तो अभी अभी बताए हैं अपेक्षा, फोर तो अभी अभी बताए हैं। तो 1 2 3 तो खैर इम्पोर्टेंट, मतलब फोर तो अभी बताए, तो फोर तो आना ही चाहिए ना। 1 and 1 to 4, अच्छा ठीक है, गुड, ठीक है। चलो देखो मैं टॉपिक पे वापस आता हूँ। अब मैंने देखो पहला जो लॉ है वो गॉस थ्योरम है, जिसको मैं ईडीएस इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट बोलता हूँ। पहला ईडीएस इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। आप कहते हैं सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, जिसमें ए इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एरिया है, क्यू अंदर का चार्ज है, एप्सिलॉन नॉट आपने बार बार यूज किया है, गॉसेस लॉ ये आप जानते हैं। सेकेंड लॉ जो है ये चैप्टर 5 जो भी हमने पढ़ा नहीं है, ये मूविंग मैग्नेटिज्म एंड मैटर का पार्ट है, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे। देखो ये दोनों मैचिंग है, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे एरिया है, यहाँ भी एरिया है। अब मैग्नेटिज्म में क्या होता है, देखो डाइपोल मैं आपसे पूछूंगा तो डाइपोल में क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। तो जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है, उसी तरीके से मैग्नेट के अंदर भी नॉर्थ एंड साउथ पोल होता है। नॉर्थ एंड साउथ पोल, नॉर्थ पोल को आप पॉजिटिव जैसा सपोज करो, क्यू एन मान लो, और इसको क्यू एस मान लो, इसको नेगेटिव जैसा सपोज करो, तो इसकी पोल स्ट्रेंथ भी होती है प्लस और माइनस एम मान लेते हैं पोल स्ट्रेंथ। तो होना क्या चाहिए, अगर मैं उसके साथ मैचिंग करूं, देखो ए इलेक्ट्रिक फील्ड, बी मैग्नेटिक फील्ड, डी ए एरिया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में जो कांस्टेंट लगता है वो एप्सिलॉन नॉट लगता है। मैग्नेटिक फील्ड में कौन सा कांस्टेंट लगता है, म्यू नॉट लगता है, म्यू नॉट। तो आपको लिखना चाहिए म्यू नॉट इनटू एम नेट, एम नेट, एम लिख दिया हूं मैं, वहां क्यू की जगह एम। व्हाट इज एम, एम इज द पोल स्ट्रेंथ, एम इज द पोल स्ट्रेंथ, बट यू नो टोटल पोल स्ट्रेंथ इज जीरो। वाई जीरो, बिकॉज मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट। जहां भी होगा नॉर्थ एंड साउथ पोल साथ साथ होगा, प्लस एम माइनस एम साथ साथ होगा। अगर मान लो माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज आपको हमेशा साथ साथ मिले, तो नेट चार्ज क्या होगा, जीरो। तो आप यहाँ पे जो बीडीएस इक्वल ईडी, ये जो लिखते हैं आप ईडीएस इक्वल टू जो लिखते हैं क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो आप लिखते हैं क्यू नेट बाई एप्सिलॉन नॉट। और अगर डाइपोल का क्यू नॉट क्या होता है, जीरो बाई एप्सिलॉन नॉट, तो जीरो होगा ना डाइपोल के लिए। उसी तरह तो डाइपोल में क्या होता है, जो इलेक्ट चार्ज होता है ना, पॉजिटिव चार्ज अलग से हो सकता है, नेगेटिव चार्ज अलग से हो सकता है, और साथ साथ भी हो सकता है। लेकिन नॉर्थ पोल अलग नहीं हो सकता, साउथ अलग नहीं हो सकता, नॉर्थ एंड साउथ साउथ साथ होगा। तो जैसे अगर पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज साथ साथ हो गया, तो उसकी नेट चार्ज जीरो होगी हमें। लेकिन पॉजिटिव अलग भी रह सकता है, लेकिन नॉर्थ एंड साउथ पोल साथ साथ होता है, लेकिन नॉर्थ अलग नहीं रह सकता, साउथ अलग नहीं रह सकता। इसीलिए वो साथ साथ होने की वजह से एम नेट जीरो होता है। इसीलिए यहाँ पे अगर म्यू नॉट इंटू एम लिखते हैं, एम नेट लिखते हैं, तो एम नेट इज ऑलवेज जीरो, सो म्यू इट इज जीरो, ये ध्यान रखना है। तो ये सेकंड जिनको डाउट है उसके लिए मैंने बता दिया। फेराडेज लॉ आप लोगों ने पढ़ा तो जरूर है, याद नहीं होगा, पर हुए टाइम हो गया। फेराडेज होता क्या है, फेराडेज का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, ई इक्वल टू माइनस डी फाइव डी टी। एक्चुअली ई जो है इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ये पोटेंशियल है, एक्चुअली में ये पोटेंशियल है। तो आपने पढ़ा है ई इक्वल टू क्या पढ़ा है, डीवी बाई डी आर पढ़ा है, डीवी बाई डी आर, तो डीवी इक्वल टू ई डी आर। तो एक्चुअली में क्या है कि आपने डीवी मतलब पोटेंशियल, तो आपने पोटेंशियल इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी पढ़ा है। ध्यान रखो, फेराडेज का लॉ है डीवी इक्वल टू डी मतलब पोटेंशियल इक्वल टू, और पोटेंशियल ईडीआर होता है, तो ईडीआर इक्वल टू बी डी फाइव बाई डी टी होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड टू डिस्टेंस। इसीलिए ये जो है ना, ये फेराडेज का लॉ ही है, सेकंड लॉ है। ईडीआर की जगह ईडीएल इक्वल टू डी फाइव बाई डी टी है, और डी फाइव वहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, तो यहाँ बी लिखा हुआ है, ये भी आप जान लो। ऐसे हम फेराडेज लॉ में तो बताएंगे ही, और ये फोर्थ अभी पढ़ाए। अब यहाँ पे सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में अगर पूछोगे तो हम ऑलरेडी बता चुके हैं, फिर भी थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं बुक ने क्या लिखा है, क्योंकि मुझे थोड़ी डिटेल करनी थी, चैप्टर छोटा है।
देखिए, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे बस। देखिए, here आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस। हाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस, कितनी बार बोल चुके हैं। Accelerating charge produces electromagnetic wave. Oscillating charge produces electromagnetic wave. If electric field and magnetic field vibrate perpendicular to each other, electromagnetic wave produce. ये मैं बता चुका हूँ। बट इन्हीं की बात सुनिए क्या लिखे हैं। Stationary charges not charges in uniform motion can source of electromagnetic. Former produces only electric field, stationary charges, while later produces magnetic field. मूविंग हो गया तो डू नॉट वेरी विथ टाइम। अगर मतलब स्टेट पहले बता चुके हैं, चार्ज इज एट रेस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज इज यूनिफॉर्म मोशन इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज इन एक्सलेटेड मोशन, तीनों चीज आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैक्सवेल थ्योरी एक्सलेटेड चार्ज रेडिएट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। देखो लास्ट में है एक्सलेटेड चार्ज, एक्सलेटेड चार्ज, एक्सलेटेड चार्ज रेडिएट, रेडिएट मींस प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यही तो बात है। प्रूफ ऑफ दिस बेसिक रिजल्ट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ बुक। ठीक है, पहले था अभी हटा दिया गया, बट वी कैन एक्सेप्ट ऑल द बेसिस रफ qualitative reasoning. Charge oscillating with some frequency, charge oscillating with some frequency, oscillating charge example, accelerating charge, एक ही बात है। This produces electric field in a space which produces oscillating magnetic field। वही कह रहा है oscillate होगा चार्ज तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, फिर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, तो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यहाँ पे हो जाएगा। लिखा है oscillating electric field magnetic field thus regenerate each other as to speak, as the wave propagate through space, the frequency of electromagnetic wave naturally equal to frequency of oscillation of charge। ऑटोमेटिकली जो जो हम ऑसिलेट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, वही फ्रीक्वेंसी उसका होता है। एनर्जी इज एसोसिएटेड विथ प्रोपागेशन ऑफ वेव्स कम्स इन एक्सपेंस ऑफ एनर्जी ऑफ सोर्स। जिस जो भी सोर्स है जिसकी वजह से हमने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को ऑसिलेट किया है, तो वही फ्रीक्वेंसी यहाँ पे होगी। फ्रीक्वेंसी ऑफ येलो लाइट इज 6 into 10^14 हर्ट्ज, while frequency that we get even modern electronic circuit has a hardly frequency 10^11। ये सब बता रहा है, लाइट की फ्रीक्वेंसी फिर भी बहुत ज्यादा है, जो हम प्रोड्यूस करते हैं वो 10^11 प्रोड्यूस करते हैं। दैट्स व्हाई एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैड टू कम लोअर फ्रीक्वेंसी रीजन ऑफ रेडियो वेव रीजन। अब ये पॉइंट पे आ गया। और भी बताते हैं, जैसे हर्ट्ज का नाम आ गया। हमारे इंडियन साइंटिस्ट जगदीश चंद्र बोस ने भी इसके ऊपर काम किया था, जो कलकत्ता में थे, और उन्होंने भी कुछ शॉर्टर वेवलेंथ के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस किए थे। यह वेवलेंथ दिया हुआ है 25 to 5 मीटर का। His experiment like that of Hertz was confirmed laboratory। और at around the same time क्या है, गुगलिलो Guglielmo Marconi in Italy followed Hertz's work, succeeded in transmitting electromagnetic wave over a distance of many kilometers। Marconi experiment marks beginning in the field of communication is electromagnetic wave। देखो, अभी पहले सबसे पहले अभी जो बात कर रहे हैं आप लोग से, इसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का रोल है। ये जो डाटा जा रहा है, हम जूम के थ्रू कनेक्ट हो रहे हैं, ब्रॉडबैंड है, वाईफाई है, यहाँ भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूज हो रहा है। लेकिन सबसे पहले ये जो मार्कोनी है ना, ये एक इंग्लिश चैनल कोई जगह है यूएसए में, सॉरी यूके में, इंग्लिश चैनल जगह है समुद्र के बीच में। चैनल का मतलब मुझे जो समझ में आ रहा है, जो कोई सी में स्पेस है, कोई 20-25 किलोमीटर या उससे भी कम है, तो जहां पे एक साइड से दूसरे साइड उन्होंने पहली बार कम्युनिकेशन मार्कोनी ने किया था। तो लिखा है ना, ओवर इन ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ओवर ए डिस्टेंस ऑफ मैनी किलोमीटर, मार्कोनी ने पहले किया। दैट इज द बिगिनिंग ऑफ कम्युनिकेशन यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अभी तो हम मोबाइल से हजारों किलोमीटर बात कर लेते हैं, तो रेडियो भी वही था। रेडियो देखो, मोबाइल जब नहीं था तब रेडियो था। तो मेरे को लग रहा है रेडियो तो मुझे ध्यान नहीं है, याद नहीं है कि कब डिस्कवरी हुई, लेकिन ये मान लो कि कुछ 80 और भी पहले होगा, 1980 या उससे पहले कोई मोबाइल नाम का चीज नहीं था, कोई अता पता ही नहीं था। तब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का यूज करके लोग इटली का, यूएसए का, जापान का, जर्मनी का रेडियो गांव में विदाउट एनी सोर्स, कोई आज की तरह कोई टावर नहीं था, कोई वायर नहीं था, वायरलेस नहीं था, कोई मोबाइल नहीं था, इंटरनेट नहीं था,
तब पर भी लोग रेडियो के थ्रू यूएसए का, जर्मनी का, पूरी ऑल ओवर वर्ल्ड का रेडियो के थ्रू आवाज सुनते थे। फिर अब यहाँ पे आते हैं नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब नेचर तो हम बात करते हैं। अब यहाँ पे एक डायग्राम है, ये 3D डायग्राम है। अब देखो ये 3D डायग्राम है, ये डायग्राम आप लोग को ड्रॉ करना है। 3D कैसे डायग्राम है वो भी पहले एक्सप्लेन करते हैं। देखो ये एक्स वाई जेड ग्राफ है, ये एक्स वाई जेड ग्राफ है। ये ग्राफ में एक्स जेड ऊपर ले लिया है, कोई बात नहीं, हम नॉर्मली हॉरिजॉन्टल ले लेते हैं। और ये वाई का ग्राफ है, और ये जेड का ग्राफ, ये वाला जो आप देख रहे हैं। तो ये ग्राफ है, और इस ग्राफ में देखो आपको पता है कि एक्स वाई जेड तीनों के बीच एंगल 90 डिग्री होता है। तो ये जो ग्राफ ऊपर की आप देख रहे हैं, ये ग्राफ ई का ग्राफ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में दिख रहा है, और ये दूसरा भी वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक ग्राफ चल रहा है ऐसे, ये वाई डायरेक्शन में है। और इसमें ये एरो जो है ना वैसा दिया हुआ है ताकि ये क्लियर हो, और दूसरा एरो ऐसे कर दिया गया, मतलब आमने सामने सामने दिया गया, बट बिल्कुल नीचे नहीं गया। ये बता रहा है कि हमारा प्लेन उसके परपेंडिकुलर, ये मैग्नेटिक फील्ड आपके पास है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आपके पास है। ये एरो थोड़ा अलग किया गया है, एरो सामने सामने नहीं, थोड़ा तिरछा किया गया है ताकि वो लगे कि 3D डायग्राम है। तो एक इस टाइप का कोशिश करो आप लोग 3D डायग्राम बनाने का। और लीनियरली पोलराइज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, पोलराइज टर्म को भी मैं यूज नहीं कर रहा हूँ। प्रोपागेशन ऑफ जेड डायरेक्शन, ठीक है। ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में आप देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है। और मैग्नेटिक फील्ड जो है वाई डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड वाई डायरेक्शन में है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जेड डायरेक्शन में है। और इसके इक्वेशन है, इस इक्वेशन को अभी आप साथ से लिख लेंगे। जो एसएचएम होता है, एसएचएम में जैसे कि आप y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी करते हैं, तो उसी तरीके से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई एक्स इक्वल टू ई नॉट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड साइन के जेड माइनस ओमेगा टी आ गया। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड पहला लाइन हो गया, दूसरा लाइन मैग्नेटिक फील्ड हो गया एम। तो बी वाई इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी, ये दोनों लिखे। के को यहाँ पे एंगुलर वेव नंबर बोलते हैं, के को। और ओमेगा को 2 पाई बाई टी या 2 पाई न्यू करते हैं। तो ये आप लिख लीजिए, ये लिख लीजिए पूरा। अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एनसीईआरटी की बुक के अकॉर्डिंग एक एक पॉइंट लेते जा रहे हैं, आप लिखेंगे। लैंग्वेज नहीं लिखना, मेन मेन पॉइंट लिखना है। मैंने कुछ चीज यहाँ पे लिखा हुआ था पहले भी, मैं ऐड कर दूंगा दोबारा उन चीजों को। देखिए, सबसे पहले आप बार बार ओमेगा को एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं यहाँ पे। ओमेगा जो लिखा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई बाई टी या 2 पाई न्यू होती है। आप लिखते जाएंगे ओमेगा जो है 2 पाई बाई टी
या 2 पाई न्यू होता है एक। और के की वैल्यू ऊपर भी लिखा गया है 2 पाई बाई लेमडा होता है। के को क्या बोलते हैं? एंगुलर वेव नंबर। एंगुलर वेव नंबर, एंगुलर वेव नंबर 1/लेमडा को वेव नंबर बोलते हैं। 2 पाई लगने से उसको एंगुलर नाम दिया गया है, एंगुलर वेव नंबर। और यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट एयर में जो होती है, स्पीड ऑफ लाइट एयर में जो होती है C = 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ये एयर या वैक्यूम के लिए है, फ्री स्पेस के लिए है। दूसरे मीडियम स्पीड ऑफ लाइट जो होगा 1/√अंडर म्यू नॉट म्यू आर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर आ जाएगा, दूसरे मीडियम में आ गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। एंड एंड स्पीड ऑफ लाइट यहाँ पे लिखा ω = C के लिख दिया हुआ है, सी के लिख दिया, ω = C के लिखा हुआ है। तो C = ω/K हो जाएगा। सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। इसको ब्रेकआउट करो, कैसे हो सकता है? जैसे कि ब्रेकआउट ऐसे करो, ओमेगा को आप कहते हैं 2 पाई न्यू कर सकते हैं, कर दो। और के क्या होता है? 2 पाई बाई लेमडा, 2 पाई बाई लेमडा। तो 2 पाई कैंसिल इक्वल टू न्यू लेमडा। तो आप जानते ही है ना, सी इक्वल टू न्यू लेमडा होता है, जानते ही, कोई नई बात तो है नहीं। लेमडा सी इक्वल टू न्यू लेमडा है। तो ओमेगा इक्वल टू सी के भी हो गया, आपस में रिलेशन आ गया। देखो सी इक्वल टू न्यू लेमडा, उसी को ब्रेक करके आ गया। नेक्स्ट, E0/B0, मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू सी। सी इज व्हाट? स्पीड ऑफ लाइट। ये सब लिखेंगे, मैथमेटिकल चीजें आएगा। और आगे नेक्स्ट, E0/B0 इक्वल टू सी, वो तो हो चुका, E0/B0 इक्वल टू सी। और यहाँ देखिए, हेयर make remarks on some feature of electromagnetic wave। क्या है रिमार्क जी? दे आर सेल्फ सस्टेनिंग ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इन फ्री स्पेस और वैक्यूम। ठीक है। दे डिफर फ्रॉम ऑल अदर वेव्स इन स्टडी सो फार। आपने जितने भी वेव्स पढ़े हैं ना, मतलब साउंड वेव्स, वाटर वेव्स, तो उससे अलग है ये, उसके साथ इसको नहीं कर सकते। नो मटेरियल मीडियम इज इन्वॉल्व इन द वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक और मटेरियल मीडियम। ठीक है, पहले नो मटेरियल मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोपागेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जबकि मैकेनिकल वेव में मटेरियल मीडियम तो रिक्वायर्ड है, यहां नहीं। और आगे बढ़े, मटेरियल मीडियम इज एक्चुअली देयर, वी नो दैट light and electromagnetic wave does propagate through glass. We have seen earlier that electric or magnetic field inside a medium are described in terms of permittivity or this। देखो ये जो लास्ट में क्या लिख रहे हैं, इनकी बात सुनो। ये क्या कह रहे हैं कि मुझे तो पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ग्लास में भी होती है, मैग्नेटिक फील्ड भी ग्लास के अंदर होती है, दूसरे दूसरी मीडियम में होती है, तो ठीक है, होती है ना। तो इसीलिए उसकी स्पीड को इन टर्म्स ऑफ जो उसके कांस्टेंट में हम लिखे गए हैं, जो हमने यहाँ पे लिखा है ना, यहाँ पे तो ये तो लिखा है ना, वही चीज लिखा है यहाँ पे, स्पीड मीडियम पे डिपेंडेंट बनाया है। आगे, वेलोसिटी ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम। यस, है ही। वी शैल सी नेक्स्ट चैप्टर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिस्पेक्ट टू अदर। चलो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ बोल तो रहे हैं, बट यहाँ पे जरूरत है नहीं मेरे को। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस वैक्यूम इज एन इंपॉर्टेंट फंडामेंटल प्रोसेस। ठीक है, वैक्यूम में जो लास्ट में यही होता है, 3 × 10⁸ उन्होंने जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बताया, कहता है जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से, म्यू की वजह से जैसे स्पीड चेंज होती है ना, तो म्यू की वजह से काफी चीज चेंज हो जाती है, वेवलेंथ भी चेंज होती है, तो स्पीड भी चेंज होती है। हमने रे ऑप्टिक्स में पढ़ा भी है, थोड़ा सा मैं एक बार बता देता हूँ। μ2/μ1 इक्वल टू C1/C2 है। कंपेयर ऑफ लाइट इक्वल टू कंपेयर ऑफ फ्रीक्वेंसी इक्वल टू λ1/λ2 है, एक रिलेशन। ठीक है, इलेक्ट्रो जितने भी टेक्नोलॉजी है,
उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूज होते हैं। क्या टेक्नोलॉजी है अभी तो है ही, टीवी सिग्नल बताया, रेडियो सिग्नल बताया, ब्रॉडकास्ट स्टेशन बताया, अब तो बहुत कुछ है। टेक्नोलॉजी मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव टेक्नोलॉजी ये है। आइए, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन सब हम देख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा प्रॉपर्टी पढ़ने के बाद हम क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, ठीक रहेगा। मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में थोड़ा शॉर्ट में बताया है, फिर भी कुछ लाइन लिखी हुई उसके बारे में थोड़ा जानना जरूरी है, क्योंकि इसके पीछे एक ग्राफ आएगा, वो ग्राफ आपको कंफ्यूजन करेगा, उस कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए यहाँ पढ़ना है। एट टाइम मैक्सवेल प्रेडिक्टेड एक्सिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सही है जी। ओनली फैमिलियर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर विजिबल लाइट, बिल्कुल ठीक है। आपने सिर्फ विजिबल लाइट को ही तो देखे हैं, आप में से किसी ने अल्ट्रावायलेट को देखा है क्या? एक्सरे देखा है? हमारे देखा नहीं होगा, आपने उसके थ्रू कोई काम किया है, देखा नहीं होगा। हाँ, लेकिन हम रेड कलर देखते हैं, रेड कलर की लाइट, ब्लू कलर की लाइट, येलो कलर की लाइट देखते हैं। इंफ्रारेड सुनते तो हैं, देखा नहीं, आंख में दिखेगा भी नहीं। हमारी आंखों की एक रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी देखने की कैपेसिटी है, जब सब उतना ही देखते हैं। हमारे सामने से यूं भी चला जाएगा, कोई पता भी नहीं चलेगा, हमारे बॉडी में एक्सरे पास हो रहा है, पता दिखता ही नहीं है मुझे। गामा रेज नहीं देखते, रेडियो वेव्स नहीं देखते। मोबाइल से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कम्युनिकेशन होता है, आपके बगल में मोबाइल रखा हुआ है, कोई बात कर रहा है, कहीं से कॉल आ गई, तो कॉल में क्या आएगी? कॉल में क्या आया? वेव ही तो आया। ऐसा तो नहीं कि अब आपके मोबाइल खड़ा है और आपसे वेव आ गया, आपके घर में गेट में घुसने वाला है वेव, आपने देख लिया, अरे रे गेट पे वेव आ गया, अब तो मोबाइल बजेगा बजेगा। ऐसा हुआ है जी? आप छत पे मोबाइल ले, बालकोनी में खड़े हैं, मोबाइल दूर से देख लिया, अरे रे वह गेट से एंटर हो रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ गया, अब मोबाइल रिंग होने वाला है, मेरा वाला वेव आ रहा है। किसी को ऐसा महसूस हुआ? नहीं, देख नहीं सकते ना हम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं देख सकते। मतलब लाइट को देख सकते हैं, बट दो दूसरे रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी वेव है ना, एक्सरे को नहीं देख सकते, तो ये बात इन्होंने कहा है। चलिए, हाँ, लेकिन मैं थोड़ा सा बस इसके बारे में थोड़ी सी एक दो बात और पॉइंट आउट कर देता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं कि हमारी आंखें नहीं देख पाती, हमारी आंखें जितने भी कुछ एनिमल है ना, जो अदर देन जो विजिबल लाइट है वो भी देख पाते हैं। कौन एनिमल क्या देख पाते हैं, मुझे इसके बारे में याद नहीं, बट स्नेक्स कैन डिटेक्ट इंफ्रारेड वेव्स, वी कैन नॉट। some other animal, it may be owl, it may be dog, it may be cat, their sensitiveness of the eye may be beyond the visible light. Our eye only sensitive to visible light, vivigure। देखो वर्ड है vivigure, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड जो है, रेड के आगे है इंफ्रारेड, हम नहीं देख पाते। वायलेट से पहले अल्ट्रा वायलेट, हम नहीं देख पाते। उसके आगे पीछे और भी है, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, वो तो अलग ही है, बट इंट्रावायलेट वायलेट फिर है, गामा रेज, एक्स रेज, वो तो अलग ही है। तो ये भी हम नहीं देख, हम तो बॉर्डर को ही नहीं देखते, हम अल्ट्रा वायलेट और इंफ्रारेड के बीच में है। लिखा, क्या लिखा है आगे? बाय द एंड ऑफ 19th century, X-rays, gamma rays also had been discovered. Electromagnetic wave include visible light, X-rays, gamma rays, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड। देखो ये जो टर्म है ना, एक बार आप लोग पढ़ लो, बोल लो, नाम बोल लो, नाम से फैमिलियर रहो, ऐसे तो है ही, फिर भी दोबारा बोल लो। नेक्स्ट, देयर इज नो शार्प डिवीजन बिटवीन वन काइंड ऑफ वेव टू एंड नेक्स्ट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, नॉट शार्प डिवीजन। Classification is based roughly how the waves are produced or detected, roughly। ऐसा नहीं है कि आपने बोल दिया, देखो ध्यान से मैं जो वर्ड बोलता हूं ध्यान से सुन लेना। 1 हर्ट से 1000 हर्ट तक रेडियो वेव्स है, लेट इट। रेडियो के बाद माइक्रोवेव है, तो 1001 से 5000 तक माइक्रोवेव है, रा में।
उसके बाद इंफ्रारेड होता है। तो 5001 से 10,000 तक इंफ्रारेड है। ऐसा नहीं है जो मैं बोल रहा हूं, ये तो मैं शार्प डिवीजन कर रहा हूं ना। मैंने बोल दिया 0 से 1000, फिर कहा 1001 से 5000 तक, फिर मैंने कहा 5001 से 10,000 तक का। ये तो मैं शार्प बाउंड्री खींच रहा हूं। एक खत्म हुआ 1000, 1001 से चालू हुआ 5000, खत्म हुआ 5000, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा रेंज यहाँ पे शार्प डिवीजन नहीं है, थोड़ा ये एक दूसरे के अंदर घुस जाता है। आई मीन जीरो से जीरो से मान लो 1100 तक एक चल रहा है, और दूसरा क्या है 1000 से शुरू होके और मान लो 6000 तक चल रहा है, और तीसरा क्या है 5000 से शुरू होके 11,000 तक चल रहा है। लाइक दिस कुछ ओवरलैपिंग हो रहा है। अभी मैं दूंगा दूंगा पीछे समझ में आएगा। देखो मैंने ये क्यों बता रहा था, ये पीछे ग्राफ है, आप इसको ध्यान से देखना मैंने जो बताया, और इसके साथ क्या कुछ बातें मैच हो रही थी क्या। पहले इसको ध्यान से देखना जो आपके सामने। इवन आप एक रफली इसको बना लो, ज्यादा तो मत बनाओ, बट रफली थोड़ा वर्क कर लो दोनों। एक साइड में आप देख रहे हैं वेवलेंथ है, दूसरे साइड में फ्रीक्वेंसी है। देखिए नीचे से देख लीजिए, पहले रेडियो वेव होता है, ये रेडियो वेव है। इन्हें रेडियो वेव का यहाँ पे लाइन लिख लिया है। एक्चुअली ये लॉन्ग रेडियो वेव है, एएम वेव का ये लाइन लिख रखा है। टेलीविजन भी रेडियो वेव ही है। देखो माइक्रोवेव यहाँ पे देखना, ये शॉर्ट रेडियो वेव है। और देख लो यहाँ पे लाइन कैसे है, ये पूरा है यहाँ से, मतलब 10 से लेके कहां तक गया, 10 की पावर 11 और 12 के बीच तक चला गया। ये पूरा रेडियो वेव है, आर डब्ल्यू कर देता हूँ रेडियो, जबकि रेडियो वेव खत्म हुआ नहीं। और यहाँ पे देखो माइक्रोवेव शुरू हो गया, लाइन कलर चेंज कर देता आपको दिक्कत होगा। ये देखो माइक्रोवेव शुरू हो गया, सॉरी माइक्रोवेव है यहाँ तक, ये हो गया। हाँ इंफ्रारेड के बारे में थोड़ा सा इन्होंने शार्प डिवीजन कर दिया है, विजुअल लाइट अलग ही है। फिर यूवी और एक्सरे में देख रहे हो ओवरलैप कर रहा है, अल्ट्रावायलेट और एक्सरे यहां तक ओवरलैप करते, गामा के अंदर तक चला गया है एक्सरे, और गामा रे जो है एक्सरे के बॉर्डर से शुरू हो गया है पीछे। तो शार्प डिवीजन नहीं है, थोड़ा रेंज ऊपर नीचे गया है, वही चीजें बता रही। चलिए नेक्स्ट, एक चीज ये, मैंने आप में से कुछ बच्चों को तो याद करवा दिया है शायद, फिर भी कर लो एक बार, अब याद कर लेना। आप में से जिसको भी ऑर्डर याद है, ऑर्डर ऑफ रेडियो वेव्स, मतलब मैं कहूंगा कि फ्रीक्वेंसी के ऑर्डर में अरेंज करो सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को, तो कोई कर सकते हैं, या वेवलेंथ के ऑर्डर में कर सकते हैं, तो आप जवाब दे देना चैट बॉक्स में। चैट बॉक्स में ऑर्डर में जिनको याद है। यस नो में जवाब दे सकते हो कि मुझे याद है, मैं बता सकता हूँ कि इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। मैं वैल्यू नहीं पूछ रहा हूँ, बट कंपेयर, वी कैन कंपेयर। अगर मैंने 5 दे दिया तो आप बता सकते हैं कि पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा, किसी को याद है। ओके गुड। और किसी को अभी याद हो जाएगा, जिनको याद नहीं है। ओके राइट, ठीक है। देखिए फ्रीक्वेंसी जो है ना, नीचे से ऊपर जाती है, जो मैं अभी बताऊंगा। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो देखो अपेक्षा, ये कॉस्मिक जो लोएस्ट लिख रहे हो ना आप, कॉस्मिक कॉस्मिक वेव के बारे में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हमारे इस बुक में चैप्टर में नहीं है, फिजिक्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, तो कॉस्मिक का हम डिस्कशन करेंगे ही नहीं। ठीक है। हाँ, अब मैं जो बात कर रहा हूँ अभी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। देखो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो वेवलेंथ कम होगी, रेसिप्रोकल चलता है। जब मैं बोलूंगा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी तो हाईएस्ट एनर्जी, हाईएस्ट एनर्जी तो लोएस्ट वेवलेंथ। क्यों? क्योंकि
C इक्वल टू न्यू लेमडा होता है। तो न्यू इक्वल टू सी लेमडा। तो न्यू इज रेसिप्रोकल ऑफ लेमडा होता है, फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ का रेसिप्रोकल होता है। जहां पे फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होगा, मैं एक टर्म बताता हूं, आप ध्यान से सोचो। ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। टॉपिक इज रामी इनविजिबल अल्ट्रा एक्स गामा। यस, रामी इनविजिबल अल्ट्रा एक्स गामा। टॉपिक इज रामी इनविजिबल अल्ट्रा एक्स गामा। ये क्या मतलब है रामी इनविजिबल अल्ट्रा एक्स गामा? रा आर ए रा फॉर रेडियो, रेडियो वेव। पहला है रेडियो वेव, रा मी फॉर माइक्रो, मी फॉर माइक्रो। सेकंड इज माइक्रो, रा मी। इनविजिबल, इन फॉर इंफ्रारेड, इन फॉर इंफ्रारेड। विजिबल, विजिबल लाइट, वही विजिबल जो है विजिबल लाइट। रामी इनविजिबल। अल्ट्रा, अल्ट्रा से अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट इज नेक्स्ट वन, अल्ट्रावायलेट। एक्सरे, एक्सरे, फिर एक्सरे, एंड लास्ट वन इज गामा रेज। गामा रेज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट एनर्जी। उससे पहले एक्स रेज। तो मैंने कहा था रामी इनविजिबल अल्ट्रा एक्स गामा। रा आर ए फॉर रेडियो, मी फॉर माइक्रो, रेडियो, माइक्रो, इंफ्रारेड, विजुअल लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रेज। जो मैंने टर्म बोलते हैं ना, उसमें पहले दो लेटर से ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज ऑर्डर होगा तो वेवलेंथ डिक्रीज होगा। रामी, आर ए, रा फॉर रेडियो, मी, एम आई मी फॉर माइक्रो, रामी इंडिविजुअल अल्ट्रा गामा, रामी हो गया। उसके बाद इन फॉर इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, विजिबल। नेक्स्ट वन विजिबल मतलब विजिग्योर, विजुअल लाइट। एंड अल्ट्रा वायलेट, नेक्स्ट वन अल्ट्रा वायलेट, फिर एक्सरे, फिर गामा रेज। ये मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी बोला, इसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। जब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो वेवलेंथ कम होगी। तो पहला है रेडियो, रेडियो की फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, रा मी। उसके बाद माइक्रो, माइक्रो की फ्रीक्वेंसी उससे ज्यादा है और वेवलेंथ कम है, रा मी। इनविजिबल, फिर इनविजिबल इंफ्रारेड आ गया, उसकी फ्रीक्वेंसी थर्ड नंबर पे है। फोर्थ नंबर पे फ्रीक्वेंसी आ गया विजुअल लाइट की, फिफ्थ पे अल्ट्रावायलेट की, एंड उसके बाद सिक्स नंबर पे एक्सरे की, सेवन नंबर पे गामा की हो गई। तो गामा की सबसे ज्यादा एनर्जी है, सबसे ज्यादा एनर्जी गामा की है, और वेवलेंथ सबसे कम है। तो आपने रामी इंडिविजुअल अल्ट्रा गामा के बारे में चीजें बता दिया है। नेक्स्ट वन, ये तो ऑर्डर याद करने के लिए है। इसमें अब थोड़ा सा इसके प्रॉपर्टी और यूजेज के ऊपर बात करते हैं। ऐसे तो बुक में लिखा हुआ है, फिर भी एक बार देखते हैं। पहला, नंबर वन, रेडियो वेव्स। देखो रेडियो वेव्स सबसे पहला है, इसकी क्या काम है? तो जितने भी टेलीकम्युनिकेशन से पर्पस की चीजें हैं ना, वो सभी का सभी रेडियो वेव से है। सभी का सभी का मतलब मोबाइल से आप बात करते हैं, उसमें जो वेव यूज होती है, रेडियो में जो वेव यूज होती है, जो एफएम में वेव यूज होती है, जो टेलीविजन में वेव यूज होती है, जो इंटरनेट के ब्रॉडबैंड वगैरह में यूज होती है, ये सभी के सभी रेडियो वेव्स हैं। टेलीफोन, इंटरनेट, एफएम, रेडियो, टेलीविजन, ये है। इसके कुछ रेंज है, कुछ थाउजेंड तक ही है। तो पहला हमने बता दिया। इसके बाद नेक्स्ट जो है माइक्रोवेव। यस, क्या है नेक्स्ट? माइक्रोवेव। तो माइक्रोवेव क्या है? माइक्रोवेव का तो ऐसे यूज ज्यादा है, लेकिन माइक्रोवेव में जो मेन यूज है, माइक्रोवेव ओवन का है, जिसमें आप खाना को गर्म करते हैं। तो वो कैसे काम करता है? उसके अंदर क्लेस्ट्रॉन, गन डायोड या मैग्नेट्रॉन, इस तीन में से कोई एक डिवाइस होता है। और ये डिवाइस मतलब इंस्ट्रूमेंट ये लगा होता है, पार्ट्स होते हैं। और जब इसमें लाइट दी जाती है तो वो एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेट का मतलब वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है, ये रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव छोड़ने लगता है। और हमारा जो खाने का आइटम होता है, जो कुछ भी होता है, हम उसमें रखते हैं, एक ग्लास प्लेट में या प्लास्टिक प्लेट में डालते हैं, तो वो घूमने लगता है जो माइक्रोवेव में, और घूमने से उसकी एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है। और जो हमारा सोर्स ऑफ लाइट है, सॉरी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वहां से उस दोनों के बीच में एक रेजोनेंस होता है, फ्रीक्वेंसी मैच होता है। तो एनर्जी प्रोड्यूस बाय मैग्नेट्रॉन्स या मैग्नेट्रॉन्स या एक क्लेस्ट्रॉन, उससे निकलने वाली एनर्जी जो है वाटर मॉलिक्यूल में ट्रांसफर हो जाता है। तो हमारा जो खाने में वाटर मॉलिक्यूल है, दैट गेन्स एनर्जी फ्रॉम दैट माइक्रोवेव्स, एंड दे गेट हॉट, दे गेट। तो ऐसे काम करता है। अगर वहां पे हम रोक देते हैं तो काम नहीं करता। कोई ऐसी चीज रखती है जो बिल्कुल 100% ड्राइड है, वाटर मॉलिक्यूल है ही नहीं, तो वो गर्म नहीं होगा, तो गर्म ही नहीं होगा। क्योंकि आपने देखना कि अगर गर्म होता तो खाली ग्लास और खाली शीशा को घुमा दोगे तो गर्म होगा क्या? कुछ नहीं होगा, ठंड जैसे है वैसे ही रहेगा। हाँ, पानी देंगे तो सिर्फ पानी गर्म होगा। आपने चावल रखा, चावल गर्म हो जाएगा। लेकिन कोई ड्राई चीज है जिसके अंदर कोई भी वाटर मॉलिक्यूल नहीं है, तो उसके लिए गर्म नहीं होगा।
सेफ्टी पर्पज से बताते हैं, कुछ मेटल की चीजें उसके अंदर यूज नहीं करनी है। और नेक्स्ट रामी के बाद इंफ्रारेड आ गया। इंफ्रारेड भी बहुत कमाल की चीजें है। इंफ्रारेड पहले तो स्नेक्स कैन डिटेक्ट इंफ्रारेड, ह्यूमन आई कैन नॉट डिटेक्ट। एंड हाँ, इंफ्रारेड का यूज जो है ना, जो रिमोट स्विच है इसमें इंफ्रारेड यूज होता है। और पहले आपको बता दूं कि ये जो मोबाइल अभी आप लोग यूज करते हैं ना, तो अभी पहले, अभी 17 17, हाँ, काफी टाइम पहले जो है, इवन एप्पल नहीं था, या एप्पल था भी नहीं। आप देख लो 17 चल रहा है, तो 17 ईयर्स एप्पल के हुए हैं। उससे एक दो साल पहले से ऐसे एप्पल आ रहा है। तो 1750 25 माइनस 17 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 8। तो 2008 या उससे पहले जो मोबाइल थे, या जब तक कीपैड मोबाइल, जो एंड्रॉइड मोबाइल नहीं थे, उससे पहले हमारे लिए कोई मोबाइल में गाना बज जाए ना तो बहुत बड़ी बात होती थी। गाना बज जाए तो मोबाइल में बड़ी बात होती थी। गाना में फोटो अगर आ जाए, मतलब खींच के नहीं, एनी वैसी फोटो आ जाए, तो दैट इज बहुत बड़ी बात होती थी। अगर किसी के मोबाइल में कैमरा हो गया ना, कैसा भी गंदा कैमरा है, तो समझो कि वो अपने आप को बड़ा अमीर समझता था। वो अपने आप को क्या समझता, दूसरे लोग भी उसको अमीर समझते थे। ठीक है। तो उस समय अगर किसी मोबाइल में कोई फोटो है और वो फोटो ट्रांसफर कर देना, दैट इज मिरेकल। मिरेकल होता था। ब्लूटूथ नाम का कोई चीज ही नहीं था, वाईफाई वर्ड ही नहीं था। इंटरनेट तो था, बट इंटरनेट इतना कॉमन नहीं था। बड़े बड़े बिजनेसमैन ही लोग इंटरनेट यूज करते थे। ठीक है, सिर्फ हम इंटरनेट सुनते थे। तो अच्छा, ये सब चीजें मैंने दिल्ली में देखा है। तो अभी तो हम नहीं कहेंगे, एक मोबाइल था, कोई 25,000 रुपए का उस समय होता था। उसके अंदर थोड़ा मोटा सा मोबाइल हुआ करते थे, उसके अंदर सिर्फ फोटो खींच सकते था, सिर्फ सिंपल फोटो। बिल्कुल थर्ड क्लास का फोटो, आज के हिसाब से बिल्कुल थर्ड फोर्थ सेवेंथ, जितना भी जो नीचे का क्लास है ना, वो फोटो भी उस समय के फोटो से आज का फोटो बढ़िया है, जितना भी गिरा क्लास है। बट वो मोबाइल रखने का मतलब ये है कि वो आदमी कुछ अलग लेवल का ही है। सिर्फ 25,000 का मोबाइल था, वो अलग लेवल का ही आदमी था। नोकिया कंपनी का मोबाइल आता था। और ये कंपनी तो एप्पल, सैमसंग वगैरह का भी कोई नाम नहीं था उस समय। तो मैं उसके अंदर एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में जो ट्रांसफर करते थे ना, डाटा, डाटा मतलब नॉट डाटा, डाटा तो इतनी बड़ी चीज होती ही नहीं थी। मैसेज व्हाट्सएप नाम का चीज ही नहीं था। तो और इंटरनेट में जितना हम फ्रीक्वेंसी यूज करते थे, साइबर कैफे में लोग जाते थे और वहां पे 50 रुपए घंटे, 40 रुपए घंटे दे के इंटरनेट यूज करते थे, कुछ ऐसे चलता था। और हाँ, तो एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में जो फोटो भेजते थे ना, वेयर इंफ्रारेड का एक ऑप्शन होता था। जैसे अभी मोबाइल में एक ब्लूटूथ का ऑप्शन होता है, तो पहले एक इंफ्रारेड का ऑप्शन होता था। और वो इंफ्रारेड से एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में सिंगल फोटो जाता था, नॉट ए वीडियो, सिंगल फोटो जाता था। तो इंफ्रारेड का तो ये यूज है। कुछ बचेगा क्या, मैसेज आएगा कॉस्मिक, ठीक है। हाँ, तो अभी इंफ्रारेड का, तो इस इंफ्रारेड का यूज और भी बताते हैं कि, अभी देखेंगे बुक में क्या लिखता है। विजुअल लाइट के बारे में तो आप जानते हैं, विजुअल लाइट क्या काम है। इंफ्रारेड कुछ गर्मी, कोई टेम्परेचर के कारण भी प्रोड्यूस, कोई गर्म चीज है तो वहां से इंफ्रारेड निकलती है। और विजुअल लाइट तो है ही। और भी एक चीज बताते हैं। आपके घर में एक डिवाइस है, बल्ब जैसा। तो दो तरह के बल्ब है। एक बल्ब सिर्फ लाइट देती है, और एक दूसरा बल्ब है लाइट के साथ साथ गर्मी भी देती है। तो लाइट देना विजुअल का काम है, विगोर का काम है। और साथ में अगर गर्मी भी है, हीट भी निकल रही है लाइट के साथ साथ, तो वो विजुअल के साथ साथ इंफ्रारेड रे भी रेडिएट कर रही है। शो वी फील हॉट। पहले फिलामेंट वाली बल्ब होती थी, किसी ने देखा होगा, अभी भी कहीं कहीं होते हैं। तो उस फिलामेंट से विजुअल लाइट और इंफ्रारेड भी निकलती थी। इंफ्रारेड की वजह से वो ज्यादा गर्म होता था, हीट हो जाता था। और पुराने जो ओवन होते हैं, ओवन, हॉट ओवन, नॉट माइक्रोवेव, तो वो उसके अंदर जो भी बल्ब लगे होते हैं वो इंफ्रारेड ही प्रोड्यूस करते हैं। इंफ्रारेड के बाद अगला आता है अल्ट्रावायलेट। तो अल्ट्रावायलेट के बारे में, वेरी हॉट बॉडीज, नॉट सिंपल। आपने से किसी ने अगर कोई लोहा, आयरन को बिल्कुल गर्म होके इतना गर्म देखा होगा कि रेड दिख रहा होगा, रेड,
तो वहां से यूवी निकलती, विजुअल लाइट भी निकलती इनफैक्ट, और यूवी निकलती, क्योंकि वो बहुत ज्यादा तेज गर्म होती है। जैसे आपने सुना है कि सन से यूवी रे निकलती है, और ओजोन लेयर कहीं होल है तो उसके थ्रू जब यहाँ पे आती है तो बहुत गर्म होती है ओजोन लेयर। अगर किसी अल्ट्रावायलेट अगर किसी की बॉडी पे 5-2-4 मिनट पड़ जाए तो जल जाता है, स्किन वहां पे मतलब थोड़ी देर खराब हो जाएगा, स्किन डिजीज टाइप हो जाती है। इवन बताते हैं स्किन टैनिंग होती है, तो टैनिंग तो स्लो स्लो में है, अगर ज्यादा देर पड़ जाए तो वहाँ बर्निंग सेंसेशन हो जाती है। तो आपने पढ़ा है कि ओजोन लेयर की वजह से, ओजोन लेयर हमें इंफ्रारेड से प्रोटेक्ट करता है। और ओजोन लेयर ज्यादा ऑक्सीजन हमारा O2 O3 में कन्वर्ट होता है, आपने पढ़ा होगा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है हमारा इन्वायरमेंट में तो फिर ओजोन लेयर डिस्ट्रॉय होने लगता है। और ये भी पढ़ा होगा आपको अपने, जो हमारे फ्रिज और एसी से सीएफसी गैस निकलते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वो ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय करता है। इसीलिए आजकल गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसी है कि वो गैस यूज नहीं करना। तो ये यूवी के बारे में। यूवी का और भी हम यूज करते हैं, हम खाने में, सॉरी, पानी जो हम पीते हैं, आरओ का पानी होता है, उसके अंदर यूवी एक लेंस यूवी लगाते हैं, यूवी लेंस, जो वाटर में उसको, जो जर्म है उसको किल करने में काम करता है। और कुछ जगह पे थेरापी में भी यूवी यूज होता है, कई बार बॉडी में पेन हो जाता है, मसल्स में पेन हो जाते हैं, तो फिजियोथेरापी वाले यूवी लैंप टाइप कुछ उनके पास होता है जो हमें उस बॉडी को, उस मसल पार्ट को हीट करते हैं। तो वो वहाँ पे उसको हीलिंग करते हैं, ये काम है। यूवी में एक लेसिक सर्जरी होती है, आंखों की सर्जरी होती है, वहां भी यूवी का यूज होता है। तो यूवी के बाद हो गया, उसके बाद एक्सरे। एक्सरे को रोंटगन डेवी कहते हैं, क्योंकि रोंटगन ने इसको प्रोड्यूस किया, और कूलिंग ट्यूब में प्रोड्यूस किया जाता है एक्सरे। एक्सरे ऐसे अलग से एक फिजिक्स में चैप्टर है जो आईआईटी एडवांस में है, तो हम उसके बारे में नहीं पढ़ेंगे। और एक्सरे का बोन फ्रैक्चर के बारे में, बोन फ्रैक्चर वो बोन के थ्रू पास हो जाता है, पास नहीं होता कभी, और बॉडी का जो मसल्स है उसके थ्रू पास हो जाता है। तो कभी भी कोई फ्रैक्चर होता है तो एक्सरे डालते हैं, तो मसल्स के थ्रू पास कर जाता है। तो बोन में अगर कहीं फ्रैक्चर है, कि बोन में फ्रैक्चर हो गया। और इसके अलावा कुछ और भी कुछ एक्सरे का, इसके अलावा भी कुछ यूज है, कुछ ट्रीटमेंट में, ट्यूमर वगैरह में एक्सरे होता है। और गामा तो सबसे ज्यादा एनर्जी वाली चीज होती है, तो वहां भी यूज होते हैं गामा। गामा का एक्चुअली ट्यूमर को ऑपरेशन करने में, या आजकल कुछ ऐसे भी ऑपरेशन है जहाँ पे गामा से हो जाता है। गामा में कोबाल्ट का यूज किया जाता है, कोबाल्ट 60 का। कोबाल्ट 60 से गामा रेज निकलती है, तो बॉडी के जिस पार्ट में कोई ट्यूमर वगैरह एक्स्ट्रा चीजें हैं वहां पे उसको ऑपरेशन करके डाल दिया जाता है। उसका कुछ 2 महीने 3 महीने या 1-2 महीने का टाइम होता है, और उससे गामा रेज निकलते वाले उस टिश्यू को डिस्ट्रॉय करता रहता है, सेल को डिस्ट्रॉय करता रहता है, फिर उसको हम रिमूव कर देते हैं। तो विदाउट सीजर जो होता है, उनका ऑपरेशन यहाँ ट्यूमर को हटाने में होता है। अब जो मैंने चीजें बताया है, मैंने अपनी मेमोरी बेस पे चीजें बताया है। अब यहाँ बुक भी है, बुक के अंदर भी आप कुछ चीजों को देखो। यहाँ पे कुछ उसके साथ डिजिट नंबर की भी बात हो रही है, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं। देखिए नंबर क्या है। क्या रेडियो में प्रोड्यूस एक्सिलेटिंग मोशन ऑफ चार्ज? रेडियो इज प्रोड्यूस radio is produced by accelerating motion of charge conducting wires. They are used in radio, television, communication, बता रखे हैं। फ्रीक्वेंसी रेंज 500 किलो टू 1000 मेगाहर्ट्ज बता रहा है। एएम वेव, जो रेडियो वेव में होता है ना, वहाँ एएम भी होता है, 530 किलो हर्ट्ज, तो ये है। हायर फ्रीक्वेंसी 54 मेगाहर्ट्ज तक बता रहे हैं, शॉर्ट वेव बैंड बोलते हैं। टीवी रेंज, देखो टीवी इतनी ज्यादा चीजें हुई ना, चेंज हो गई है कि मैं हर एक कुछ को बता भी दूं तो आप समझने के मतलब फील नहीं कर पाएंगे। ये जो आप टीवी अभी यूज करते हैं ना, अगर आज से टीवी एटलीस्ट 10 साल पहले का टीवी यूज करते हैं ना, तो टीवी में सेटिंग होती थी, सेटिंग में एक यूएचएफ बीएचएफ होता था। तो यूएचएफ बीएचएफ रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी चैनल होते थे, चैनल जितने भी चैनल है, भी टीवी है, आज तक है, जी न्यूज है, तो इन सब के अपने अपने हर्ट्स एक फ्रीक्वेंसी सेट किया हुआ है, और सैटेलाइट के थ्रू इनका कम्युनिकेशन होता है। बड़े सारे टर्म है, हर एक टर्म को बताऊं तो काफी लंबा हो जाएगा। उसमें एक ट्रांसपॉन्डर लगाए जाते हैं सैटेलाइट में, इसी पर्पज से।
फिर एफएम के बारे में मैं शायद पहले डिस्कशन किया हो कि नहीं किया, मुझे याद नहीं है, लेकिन थोड़ा सा भी डिस्कशन कर लेता हूँ। देखो एफएम में 88 हर्ट्ज टू 108 मेगा हर्ट्ज एफएम का रेंज होता है। अगर आप लोग एफएम सुनते हैं तो आप लोग जरा सोचना, बोलने की जरूरत नहीं, बोल देंगे भी तो भी ठीक है। एफएम के वो बोलना क्या बोलते, फ्रीक्वेंसी, जैसे रेडियो मिर्ची है, रेडियो फीवर है, रेडियो सिटी है, तो सबकी फ्रीक्वेंसी बोलता रहता है जी, मैं 102 मेगा हर्ट्ज पे बोल रहा हूँ, 101 पे बोल रहा हूँ, 93.5 पे बोल रहा हूँ। तो आप ध्यान करो, जितनी भी फ्रीक्वेंसी है ना, वो 88 से 108 के बीच में है, जो आप दिख रहा है जहाँ पे मैंने यहाँ ब्लॉक किया है, सारे इसी के रेंज में होता है, क्योंकि एफएम का रेंज यही डिसाइड किया हुआ है। ऐसे ही एयरटेल को एक अलग फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, वोडाफोन के एक और अलग फ्रीक्वेंसी है, जियो को अलग फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, रेंज। ये सारे कम्युनिकेशन भी यूज होते हैं। माइक्रोवेव दूसरा आ गया। किलेस्ट्रॉन मैग्नेट्रॉन गन डायोड मैंने बताया, जिससे शॉर्ट वेवलेंथ प्रोड्यूस होता है, वैक्यूम ट्यूब भी होता है। हाँ, इसका और है, स्पीड गन यूज होते हैं, जैसे टेनिस वेनिस खेलते हैं, या और भी ऑटोमोबाइल की स्पीड पता करने में भी इसका यूज करते हैं। माइक्रोवेव ओवन आर इंटरेस्टिंग डोमेस्टिक एप्लीकेशन, such as when frequency of these microwaves selected to match resonant frequency of water molecule, मैंने बताया वाटर मॉलिक्यूल होते, so that energy from the waves transferred directly to kinetic energy of the molecules, so raise the temperature of any food containing water। देखो any food containing water, वाटर पे इस सिस्टम पे काम करता है, ये चीज हो गया। इंफ्रारेड वेव, इंफ्रारेड इज प्रोड्यूस बाय हॉट बॉडीज और मॉलिक्यूल्स, पहले बताया। दिस बैंड लाइट एडजेसेंट टू लो फ्रीक्वेंसी, हीट वेव्स बोलते हैं इसको। आफ्टर ऑब्जर्वेशन देयर थर्मल, हाँ, तो इंफ्रारेड वेव अगर कोई ऑब्जर्व करेगा तो ऑटोमेटिक उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, इसे बता रहा है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सेमीकंडक्टर लाइट emit infrared waves widely use your remote switch, household टीवी, वाईफाई सेट, रिकॉर्डर, ऐसे जगह यूज होते हैं। विजुअल लाइट तो बताइए, विजुअल लाइट का ज्यादा से ज्यादा आप ये जो फ्रीक्वेंसी का रेंज है 4 × 10⁻14 हर्ट्ज टू 7 × 10⁻14 हर्ट्ज याद रखेंगे, और वेवलेंथ का रेंज है 700 टू 400 नैनोमीटर। यहाँ पे देखो अंडरलाइन किया है, स्नेक्स कैन डिटेक्ट इंफ्रारेड वेव्स, लिखा है और भी लिखा है। विजिबल रेंज ऑफ मैनी इंसेक्ट एक्सटेंड्स वेल्थ इनटू अल्ट्रावायलेट रेंज, कहता है कुछ और भी ऐसे इंसेक्ट हैं जो अल्ट्रावायलेट तक देख पाते हैं, हम लोग नहीं देख पाते। यूवी रेंज, अल्ट्रावायलेट रेंज। अल्ट्रावायलेट का फ्रीक्वेंसी का थोड़ा रट लेना, एक बार पूछ। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन प्रोड्यूस बाय स्पेशल लैम्प वेरी हॉट, मैंने बताया था, बिल्कुल रेड हॉट आयरन से भी प्रोड्यूस होता है, बहुत गर्म हो जाता है, बहुत गर्म। ऑब्जर्प्शन ओजन लेयर, तो ओजन लेयर का लेयर तो सबसे ऊपर है, 40 to 50 किलोमीटर बताया। यूवी लाइट लार्ज क्वांटिटी हैज हार्मफुल इफेक्ट ऑन ह्यूमन बॉडी, बता चुके हैं। टैन स्किन टैन हो जाता है, काला हो जाता है। यूवी रेडिएशन प्रोड्यूसेस, और स्किन कैंसर भी हो सकता है। मोर मेलानिन, आप लोग बायो के स्टूडेंट हैं, पता ही होगा मेलानिन क्या होता है। कॉजिंग टैनिंग ऑफ स्किन, यूवी रेडिएशन इज ऑब्जर्व बाय ऑर्डिनरी ग्लास, कर सकता है। वन कैन नॉट गेट टैन ऑन सनबर्न थ्रू ग्लास विंडोज, ग्लास विंडो, कुछ जो पोलराइड ग्लास होता है ना, उसके ऊपर अगर पड़ते हैं ना, तो वो यूवी रेज को ऑब्जर्व कर लेता है, ऐसा है। वेल्डर एक अलग गोगल या फेस मास्क यूज करते हैं, आपने देखा होगा। यूवी रेज उसके भी जो वेल्डिंग करते हैं ना, तो वो भी गर्म होता है, उससे भी यूवी रेज निकलते हैं, ये सब बता रहा है। लेसिक सर्जरी जो आंखों के लिए मैंने बताया था यूज होता है। यूवी लैंप्स आर यूज्ड टू किल जर्म्स ऑफ वाटर प्यूरिफायर, बता चुके। सीएफसी के बारे में जो मैंने बताया वो लिखा हुआ है। एक्सरेज, बियॉन्ड यूवी रीजन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्सरेज होता है। इसकी वेवलेंथ 10.9 नैनोमीटर तो याद ही रखा है। एक्सरे में क्या बताऊँ, वही सब चीजें हैं। ये डिस्ट्रॉय, हाँ, सुना होगा, बच्चे, छोटे छोटे बच्चों को, प्रेग्नेंट लेडी को ज्यादा एक्सरे नहीं कराना चाहिए, क्योंकि उनके जो सेल होते हैं, टिश्यू होते हैं, वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, और उसके ऊपर बार बार एक्सरे एक्सपोजर से उसको वो पार होता है ना, तो एक तरीके का पेनेट्रेशन है। तो रेज का ही पेनेट्रेशन अगर सॉफ्ट टिश्यू सेल पे बार बार जलेगा तो वो तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा ना।
तो वो चीजें करता है, वो ध्यान रखना है, अननेसेसरी एक्सपोजर एक्सरे में नहीं करना। इवन एक्सरे मशीन वाले जो एक्सरे करने वाले होते हैं, वो लोग भी एक अलग तरीके का कपड़ा पहन लेते हैं, उनका थोड़ा जो एक्सरे से प्रोटेक्शन के लिए। बहुत पावरफुल। इसमें तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, गामा न्यूक्लियर रिएक्शन वगैरह से निकलती है, प्रोड्यूस होती है, और यूज इन मेडिसिन कुछ सेल से ही प्रोड्यूस होता है। गामा रेज बहुत पावरफुल है। अमेरिका अमेरिका में तो गामा रेज के ऊपर बहुत सारे पिक्चर बना रखे हैं, इतनी पावरफुल है। फिर यहाँ पे थोड़ा सा और दिया हुआ है, ये भी आप देख लेंगे, रेडियो वेव्स के बारे में, माइक्रोवेव्स के बारे में, इंफ्रारेड के बारे में, लाइट। गामा रेज रेडियो डीके से प्रोड्यूस होता है, और न्यूक्लियर रिएक्शन से तो प्रोड्यूस ही होता है। ये जो टॉपिक जितना अभी आपने देखा है एनसीईआरटी बुक में है, थोड़ी बहुत जो आपके पास जो अलग पैकेज है ना, उस पैकेज में कुछ और भी चीजें होगा, वो भी पढ़ना है। चैप्टर तो देखो हो गया है, ये फॉर्मूला सबका हमने डिस्कशन किया है थोड़ा सा। 10:53 हो रहा है टाइम। मैं एक न्यूमेरिकल करके क्लास को क्लोज करना चाहता हूँ। एक दो एक दो सॉल्व न्यूमेरिकल लेते, यही न्यूमेरिकल है यहाँ पे पीछे, आप लोग इसको देखिए, किया हुआ है, मतलब ये दोनों ही न्यूमेरिकल, देखो ये दोनों न्यूमेरिकल कर लो। एक फिर हम एक्सरसाइज का भी लेंगे, आप लोग खुद से कीजिए इसमें। मेरे को लग रहा है कोई ऐसा खास नहीं है, फिर भी मैं एक बार डिस्कशन करूंगा, फिर भी देखिए। 5 मिनट का टाइम लगाओ, कर लो। पहला में तो कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं लग रही मेरे को। अभी अभी हमने किया था, ई बाई बी इक्वल टू सी, ई इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड बाई सी, सी स्पीड ऑफ लाइट होता है। इसमें से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है 6.3, तो 6.3 इंटू 3 इंटू 10 8 जो सॉल्व करके आ गया, मैग्नेटिक फील्ड आ गया, सिंपल। हाँ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और भी क्या लिखा है, देखो यहाँ क्या है, डायरेक्शन भी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फ्रीक्वेंसी दिस, फ्रीक्वेंसी दिस का मतलब आपको न्यू दे दिया, 25 मेगाहर्ट्ज 10 की पावर 6 दे दिया, और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्स दे दिया, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वाई का मतलब वाई दिया हुआ है, जे दिया हुआ मतलब वाई दिया हुआ है, तो बी कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा आपका जेड। तो यहाँ देखो जेड के लिए के लगा दिया, ये हो गया। और आगे बढ़ते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज बी वाई, बी वाई है। तो अब यहाँ पे देखना, इसमें देखो मैग्नेटिक फील्ड वाई है, और बीच में जो एक्स लगा है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डायरेक्शन, ई एम वेव की डायरेक्शन। तो तीनों परपेंडिकुलर होने के लिए ई जो है आपका जेड हो जाएगा, कॉमन बात है, बी, तो जेड हो जाएगा। तो देखो सबसे लास्ट में जो निकाला, इसमें डायरेक्शन जेड निकाला हुआ है। और आपको जरूरत पड़ेगी, ये जो इसके साथ दिया हुआ है बी नॉट दिया हुआ है, 2 इंटू 10 पर, तो आपने अभी पढ़ा है ई नॉट बाई बी नॉट इक्वल टू सी, तो ई नॉट इक्वल टू सी इंटू बी नॉट, तो 3 इंटू 10 की पावर 8 इंटू बी नॉट की वैल्यू पुट कर दो, 2 10 जो सॉल्व करके आ गया वो वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, और अंदर के सेम पार्ट सेम रखेंगे, क्योंकि ओमेगा टी प्लस के एक्स होता है। तो पहला है के एक्स ओमेगा टी, के एक्स ओमेगा टी, वैल्यू पुट कर देना है सिर्फ, सेम ही है, कोई चेंज नहीं किया गया, देखोगे ऊपर से सेम उठा के रख दिया गया। फिर भी इसको आप सॉल्व कर लो, 8.2, मैं 2 मिनट रुकता हूँ।
इसके अलावा आप लोगों को कोई चीजें पूछना है तो एक बार बोलिए। न्यूमेरिकल करेंगे तो आप लोग, ज्यादा नहीं है इस बुक में, लेकिन दूसरे बुक से भी हमें आगे करना है। तो एक बार आप लोग कुछ पूछना है तो पूछिए, नहीं तो क्लास आज हम यहीं रखते हैं, कल भी हमारा क्लास रहेगा। टाइमिंग मतलब 8:30 के आसपास का रहेगा। और अभी कल परसों दोनों दिन क्लास है शाम का। इसमें हम फर्स्ट बुक के बचे हुए पार्ट को कवर करेंगे, क्वेश्चन भी लेंगे। ठीक है, इतना ही रखे अभी। यस सर। ठीक है, आप लोग इसको प्रैक्टिस कर लेना पूरा। ठीक है, प्रैक्टिस कर लेना पूरा। और ये चैप्टर में एक बार देखो, जो भी चैप्टर पढ़ो ना, जैसे मैंने पढ़ा दिया, आपने कुछ आइडिया मिल गया, चैप्टर आ गया, बट याद तो नहीं हुआ ना। तो आपको एक दो बार पढ़ना पड़ेगा, इसको याद करना पड़ेगा, चीजों को लिखनी पड़ेगी। तो आप इस चैप्टर पे कम से कम, मतलब 2 बार पूरा पढ़ना, याद करना है, और क्वेश्चन सारा कर लेना। तो मतलब जो फर्स्ट बुक में जो इस बुक में हम लेंगे, तो एक टेस्ट लेंगे आप लोग को, ताकि आप लोग को एक सब कुछ याद हो। और टेस्ट मतलब ये हो सकता है हम संडे तक एक टेस्ट रखेंगे, पहली बुक का, फिर दूसरी बुक का एक टेस्ट रखेंगे, जिसमें कोई कुछ मैं फॉर्मूले टाइप की भी चीजें पूछूंगा और एमसीक्यू भी पूछूंगा, बट एमसीक्यू से पहले मैं कराऊंगा। हाँ, वो अपेक्षा तुम्हारा वो डाउट में रह रहा है, मैं देखता हूँ, अभी देखता हूँ। एक्चुअली क्या है ना, डाउट साथ साथ, डाउट आपका पर्सनल चीजें है ना, एक ग्रुप में है ना, चीजें आगे बढ़ती जाती है, तो हम उस जगह पे कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो अभी क्लास इतना ही रखेंगे। किसी को फिर भी कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, कोई डाउट ऐसी चीजें हैं। लेकिन मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप इन चीजों को थोड़ा लर्न करेंगे, क्योंकि सिर्फ मैं पढ़ाते जाऊँ, खत्म करता जाऊँ तो नहीं, आप लर्न करेंगे। तो ये करके रखना। और जो आपकी प्रैक्टिस है अभी तक, मतलब ये इस आज चैप्टर और इससे पहले जो भी हमने शायद रे ऑप्टिक्स कराया था, इस दोनों का जो भी आपने रिटन प्रैक्टिस किया है ना, मुझे अपेक्षा तुम्हारी कुछ क्लास जो है ना, मैं इसके अलावा ऑफलाइन भी शुरू कर दूंगा। शायद नॉट टुमारो, बट डे आफ्टर टुमारो ऑफलाइन क्लास भी शुरू कर दूंगे, तो चलेगा चलेगा। और जो 11th के पोर्शन है, तो आज ही था शुरू करना था क्लास, बट हम आज नहीं कर पाए। तो तुम्हारा ऑफलाइन भी क्लास चालू हो जाएगा, और ये भी। तो जो और भी ज्यादा डाउट है अलग अदर देन, वो हम कवर करेंगे। ठीक है, अभी इतना ही रखते हैं। थैंक यू। थैंक यू गुड सर। बाय। थैंक यू सर।